就因为叶婉清有机会继承我的部分遗产，你就这么针对他？看来幕后黑手真的是你姚二叔。你个小贱人！你这小贱人早就该死了！你死了，傅家少夫人的位置就是真真的了。妈，叶婉香呢？哎呀，你怎么了？晨晨，你放心吧，这个小贱人我已经弄死了，不会留下证据。你看，傅庭元妻子的位置只能是你的。你快去梳头，傅家的人马上就要来了，不要耽误了吉时。这里有妈妈在啊！不行，妈，我不嫁，你得想办法把叶婉香救回来，让她嫁过去。晨晨，你犯什么傻呢？傅庭元可是首富傅家的继承人，他人长得又好，为人又洁身自好，这么好的亲事，怎么能便宜了叶婉欣这个小贱人？上辈子我也是这么想的，所以叶婉欣死后，我高高兴兴嫁了过去。没想到嫁过去的第一天，傅庭元就死了。我不同意你嫁进来。爸爸不愿意返回聘礼，所以逼着我留在傅家。可没想到傅家就是个吃人的狼窝。跪下！就你是我嫂子，你也配？没过多久，我就被傅家人折磨死了。妈，你信我，傅家只是看起来光鲜，实际上嫁过去不会有什么好果子吃的。你帮我想想办法吧。你爸是不会放弃与傅家联姻的机会，你和叶婉欣总得有一个人要嫁过去。可是这个小贱人已经断气了。老天爷为什么让我重生在叶婉欣已经被掐死的时候？难道我还要再重复一遍上辈子悲惨的命运吗？不，无论如何我都不要嫁过去，大不了我离家出走。珍珍，你别冲动，你要是离家出走，你爸爸发现了一定会大发雷霆的，到时候咱娘俩都得完蛋。乖啊。请问这是何处啊？你是人是鬼？来，婉星，这是你后妈和妹妹，以后啊要听后妈的话啊。快点擦，否则你别想吃晚饭。你这小贱人早就该死了！你死了，傅家少夫人的位置就是真真的了。这个贱人不会也重生了吧？不可能啊！上辈子这个时候他已经死透透了。真没想到，我堂堂南朝世家嫡女，竟然来到了1000年后。川道被这个继母和继妹欺负长大，最后被继母掐死的可怜女孩身上。大小姐，你好了吗？叶婉星，你听到了吧？既然你醒了，那就下楼吧。不管怎么样，他活过来就好。傅家这个狼窝就留给他了。这两人想必就是原生的继母和继妹了。
我既然占了这具身体，就一定要想办法给原生报仇。叶真真，你母亲刚才为了让你替嫁，差点把我掐死，你们不应该给我一个交代吗？你好好的说我要掐死你，谁信呢？你不会以为你爸爸会站在你这边吧？我从小到大都被你们母女俩欺负，他却视而不见，我当然相信他不会向着我。但我若是抵死不嫁，他也一定会让叶真真嫁过去。不，妈，我不能嫁过去。和傅庭渊定亲的人是你，没错。但傅庭渊这些年对我不闻不问，就算是让叶真真嫁过去，想必傅家也不会有什么意见。所以一开始你就想到这个，才让叶真真替嫁，对吗？妈，说吧，你到底想要什么？这母女俩忽然反悔，证明傅家这门亲事有诈。但我要在这个世界立足，还要给元生报仇，就必须借助傅家的力量。不过我不能空着手嫁过去。把你给叶真真准备的嫁妆安装给我。你休想！行，那就让叶真真嫁过去，反正她衣服都穿好。妈，我不去，给他。大小姐，再不下楼，老爷就要发火了。妈，给你现在乖乖下去给我上婚车，敢耍什么别的心思，我要你好看。爸爸，你放心，等我嫁到傅家之后，我一定想办法讨好傅家人，让我们叶家的生意更上一层楼。哎呀，你有这个觉悟很好，这些年呀，是爸爸疏忽了你。这里啊，有张卡，你拿着，密码是你的生日啊。我已经给。谢谢爸爸。走。真真，你确定没搞错？那可是傅家呀！这丫头不但要嫁给傅庭渊，还拿走了2大笔嫁妆。妈，你放心吧，这钱啊，他有命拿，没命享。真的？当然了，你要是不信的话，现在就去跟傅家官理。我敢保证，今天是他叶晚行最痛苦的，因为这个时候傅庭渊已经车负人满了。走。傅氏集团总裁傅庭渊发生车祸，车辆与对向车辆发生碰撞，翻入河中，目前生死未卜。总裁，这辆车果然被人动了手脚，幸好您警惕，否则我们这会儿已经被烧成灰了。这种事已经不是第一次发生，能神不知鬼不觉的在我车上动手，幕后黑手极有可能是傅家人。难道是二爷？要是您死了，傅氏集团就落在二爷手里。我也不想怀疑二叔，但的确他是最具怀疑的对象。你去通知警方，出事的时候我就在车里。您确定要这么做？万一老夫人经不住这个打击……放心，奶奶没那么脆弱，我也会找个机会把真相告诉她。是，总裁，今天还是您结婚的日子，您说叶大小姐要是刚一进门就听到您的死讯，她会不会扭头就走啊？你倒是提醒我了，帮我准备个口罩。您要口罩做什么？如果二叔真的是幕后黑手，他一定会得意忘形，我当然要亲眼看看，顺便再看看那位叶家小姐
够不够格当我的妻子？原来千年后的世界，女子不必再依附男子，也能独自谋生。可惜我对这个世界还不熟悉，现阶段我还是得留在傅家。夫人，到了。岳小姐，我是傅家的保镖，是奉命来接你的。傅庭渊呢？他是今天的新郎，不应该由他来接我吗？大少爷他出了车祸，车子还翻到了河，恐怕凶多吉少。什么？傅庭渊死了？哎呦，真真，还好今天嫁过去的不是你。妈，现在你总相信我了吧？叶晚星，你现在肯定很后悔吧？可惜啊，后悔也迟了。你今天既然嫁进了傅家，就休想再回去。没错，你要是敢临阵脱逃，你爸一定会打死。谁说我要临阵脱逃了？你带路吧。这个时候，傅家人一定很伤心。我身为傅家的长媳，应该肩负起自己的责任才是。傅庭渊死了才好，我只要讨了害老夫人的欢心，就能在傅家立足了。听到我的死讯，这个女人好像很高兴。真的吗，叶小姐？你可要想清楚，你现在和少爷还未礼成，你现在回去还来得及。我与傅庭渊做了这么久的未婚夫妻，他对我不闻不问，我却不能不忠不义。放心吧，我一定会替他好好尽孝的。那边就是傅家庄园吧。这死丫头，傅庭渊死了，她竟然一点也不慌。你说她不会真能获得傅家的认可吧？不可能，妈，你且看着。你赶紧给我大哥打电话，我父亲我大哥就这么死了。大少爷的电话打不通。云峰说，事发的时候，大少爷的确在那辆车里。抱歉。老夫人，傅庭渊现在没有回来，不代表他不在了。我相信傅总吉人自有天相，一定会平安回来。你是谁啊？我是叶婉欣，今天本该是我跟傅总。你一进门，我大哥就出事，我大哥一定是被你害死的，你就是个扫把星！闭嘴！婉星啊，你是好孩子，是我们家阿渊没这福气。既然这里还没成，你就回去吧。老夫人，我既然已经进门，无论如何都不会在这个时候离开傅家的。如果您不嫌弃我，我愿意做您的孙媳妇。真的？当然。奶奶，这个女人绝对不能留在我们家。是啊，奶奶，大哥本来就对这门亲事不感冒，现在大哥人没了，把他留下来不是膈应大哥吗？叶婉清，你想留在傅家，傅庭渊这对龙凤胎弟妹就绝不会同意。上辈子我就是被他们折磨死的，这辈子你也别想好过。活要见人，死要见尸。你一口一个你大哥没了，你是真的希望他不回来了吗？你算个什么东西啊，敢就去巧姨我！我既然已经过门，就是你的大嫂，你就是拿这样的态度对待你的大嫂吗？你的规矩和教养呢？
算哪门子大嫂？你跟我哥还没有举办婚礼，那就等他回来，等他回来做决定。我相信傅庭渊一定会活着回来。你是他的妹妹，你也这么想？好一个伶牙俐齿的女人！但是你真的希望我活着回来？对，说得对，阿渊他一定会活着回来的。婉欣啊，以后你就是他们的大嫂了。奶奶，没想到这小贱人把老的小的都收服没那么简单。啊，这个女人，她不能留。妈，你就看着吧，有傅二叔在，她绝对没有好日子过。二叔，你来了。盛楠，我看婉欣挺好的，既然她有这份心，我们何不成全她？要是阿渊他真的有个万一啊，搜救队已经在寻找阿渊的下落，您就放心吧，不会出事的。至于这个女人嘛，巧言令色，满口诡辩，留在我傅家也只能是祸害。老夫人，除非傅庭渊活着回来要跟我离婚，否则我是不会离开的。好，那就让我看看你对阿渊的感情到底有多么的坚贞。来人，把东西拿上来。就因为叶婉清有机会继承我的部分遗产，你就这么针对他？看来幕后黑手真的是你二叔。叶小姐，如果你能够在这个钉板上可以战胜一刻钟，我就姑且让你留下来。盛楠，你这有点过分了吧？奶奶，这一点都不过分。要做我们的大嫂，没点真功夫能行吗？就是，他要是不愿意的话，就算了呗，又没有人逼他。真真，还好嫁过来的不是你啊。是啊，上辈子我被迫踩上钉板，坚持了2秒就摔了下来，还受了很重的伤。还好，这辈子有叶婉欣这个替死鬼。婉欣，你是叶家的女儿，这个时候可不能退缩。别忘了，叶家已经容不下你。婉欣，我看还是算了吧。有老太婆放话在这儿，谁都不能赶你走。叶婉清，你会怎么做？夫人，谢谢你的体恤。不过婉欣若是今天退缩了，日后在傅家也没有人会把我放在眼里。力从涌泉血起，今饮白雪至太白雪。恭喜小姐训练已成，如此方有世家宗父之风范。这个女人果然会让我失望。这个小贱人凭什么这么好运？二叔，计时了吗？没想到这丫头有点本事。1刻钟已过，这一关就算你过了。少夫人，小心。多谢。这人身为保镖，怎么也是如此放肆？你是谁？为什么戴着口罩？二爷，他是沈峰，上次出外勤的时候脸受伤了，我才让他戴着口罩的。
二叔，我现在可以留下来了吧？没那么简单。作为我傅家的长媳，你以后会代表阿渊出入上流社会。如果没有眼光，没有见识，那出去只能够是丢我傅家的脸。二叔，你手上那枚戒指有点来头吧？你还有些眼光。这个是南朝叶首府最心爱的翠香金戒指，价值上亿。可惜这枚戒指是假的。二叔，这就是你的见识和眼光。你凭什么说它是假的？因为这枚戒指被叶首府送给了他最心爱的长孙女，可是他的长孙女却不小心把这枚戒指摔坏了。简直是胡说八道，史书上根本没有记载。好，既然这样，我让你长长见识。刘管家，把我车上东西拿过来。是，你随我一起吧。是。叶晚星，你不是很有眼光吗？现在这里有4个瓷器，只有1个是真正的北朝古董。我现在给你1分钟的时间，如果你找不出来，就给我滚出傅家。盛南，这也太难为人了吧！奶奶，你别管他，他竟然敢说二叔的戒指是假的，这让他自己证明自己。已经过去半分钟了，你要是实在判断不出来，就自觉点，滚出去吧。还有10秒，9、8、7。真正的北朝古董就是它，就是它。蠢货，我告诉你这4个陶器没有1个是北朝的古董。其实呢，这是一道陷阱题，你以为你随便指一个就有1/4赢的概率？我告诉你，这只能说明你什么都不懂。子安说的没错，还敢说我的戒指是假的？来人，把他给我轰出去！没错，只看表面，它的确不是北朝的古董。好，但现在它是了。居然砸坏了二叔的藏品，你完蛋了你！这虽然不是北朝的古董，但是价值千万，把你卖了都赔不起。叶晚星是在挑衅我吗？我告诉你，这招对我没用。你今天不光要赔我的古董，我还要把你赶出傅家。还有你们叶家，最好做好准备。叶晚星，你个扫把星，赔偿你自己想办法，我们叶家是不会出这份钱的。姐姐，就算你对傅二叔有所不满，那也不能砸了他的藏品泄愤的。我说了，他现在就是北朝的古董，因为……够了，别在这故弄玄虚。来人，把他给我扔出去！等等，快看，那是什么？तुम ट्रिपलेट्स कैरी कर रही हो और तुम्हारी मेडिकल हिस्ट्री देखे तो तुम्हारे यूट्रस पर बहुत प्रेशर है, तो मिसकैरेज का रिस्क है। अरे क्या हुआ? वही फीलिंग्स फिर से आ गई, मुझे अजीब सा लग रहा है। पेट में दर्द हो रहा है? क्या हो रहा है? तुम तो बहुत हेल्दी हो। हाँ मिस्टर रोहन, क्या आप इंटीमेट हुए थे? तुमसे किसने कहा? खन्ना फैमिली नोबल फैमिली है। जब किसी औरत के साथ इंटीमेसी होती है तब खन्ना फैमिली के स्पेशल मार्क्स नजर आते हैं। इसलिए जिसके साथ आप पहली बार रात गुजारेंगे उसके साथ आपका कनेक्शन जुड़ जाएगा। इसका मतलब है आप वो महसूस करोगे जो वो महसूस कर रही होगी। अगर तकलीफ है
तो वो लड़की भी इस वक्त तकलीफ में ही होगी। क्या नैना इस वक्त इतना दर्द झेल रही है? नैना, इतनी देर से अंदर क्या कर रही हो? बाहर सब वेट कर रहे हैं। सॉरी, मुझे थोड़ा टाइम दो। बच्चों, बस थोड़ी देर और झेल लो। मॉम तुम्हें खोना नहीं चाहती। मिस मेरा, वो इतनी देर से अंदर है। कुछ दिन पहले किसी ने उसे पेंट्री में वॉमिटिंग करते हुए देखा। क्या वो सच में प्रेग्नेंट है? वही तो, गांव से आई लड़कियों में कोई इज्जत नहीं होती। शहर में टिकने के लिए वो कुछ भी कर लेती हैं। हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। खन्ना ग्रुप दुनिया की टॉप कंपनीज में से एक है। अगर ये क्लाइंट के साथ अंदर कुछ कर रही हो, कंपनी या फैमिली की रेपुटेशन खराब हो जाए तो? नैना, कंपनी को शक है कि तुम रूल्स के खिलाफ कुछ गलत कर रही हो। मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ, दरवाजा खोलो वरना मैं तुम्हें निकाल दूंगी। नहीं। हाँ? ये दरवाजा तोड़ दो। नैना, मैं भले ही तुम्हें इस दुनिया में लेकर आई, लेकिन मैं तुम्हें सहारा नहीं दे पाई। पर कम से कम मैं तुम्हारे लिए बोझ नहीं बनना चाहती। जब तक मेरा दिमाग चल रहा है तो मेरी बात सुनो, मेरी चिंता मत करो। माँ, अल्जाइमर एक कॉमन बीमारी है। प्लीज आप दवाई लेना छोड़ना मत। जैसे ही मैं इंटर्नशिप पास करूंगी और सैलरी बढ़ेगी, आपका इलाज हो जाएगा। टाइम नहीं है। सर, सर मुझे छोड़िए। मुझे ड्रग दिया है, मेरी मदद करो। तुम जो कहोगी वो मिलेगा। माँ, जैसे ही मैं इंटर्नशिप पास करूंगी और सैलरी बढ़ेगी, आपका इलाज हो जाएगा। सर, मुझे परमानेंट होना है। फाइनेंस इंटर्न नैना पटेल, मैं याद रखूंगा। सच में अपने ही बॉस के साथ सो गई। क्या वो मुझे परमानेंट करेंगे या बस झूठा प्रॉमिस था? ड्रामा वेव। बॉस के साथ सोना सिर्फ परमानेंट होने के लिए? यकीन नहीं होता ऐसी लड़की के साथ सो गया। जाओगी नहीं? सर, मैं ऑफिस जा रही हूँ। लगता है ज्यादा रफ हो गया। ड्राइवर तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ देगा। मैं ऑफिस में बोल दूंगा कि तुम एब्सेंट हो। नहीं, मिस्टर रोहन, ये सब लड़कियां मैंने खुद आपके लिए सेलेक्ट की हैं। बाहर निकलो। मिस्टर रोहन, ये लड़कियां सिर्फ रिच और फेमस ही नहीं हैं, वो सब टॉप मूवी स्टार्स भी हैं। फिर भी पसंद नहीं आई? मुझे इंटरेस्ट नहीं। सोच के देखो, देश का सबसे अमीर आदमी और खन्ना फैमिली का वारिस जो लॉ और अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, इस फैमिली में अकेला बेटा है। अभी ओल्ड मास्टर और मैडम सिर्फ अपनी गोद में एक पोता या पोती चाहते हैं।
हमें मुश्किल से आपको ड्रग करने का मौका मिला, पर आप किसी लड़की को देखते तक नहीं। फाइनेंस डिपार्टमेंट जाओ। हाँ, ये बॉस कब से खुद फाइनेंस डिपार्टमेंट जाने लगे? मिस्टर रोहन, कॉफी तक लाना नहीं आता, इसमें 3 घंटे लगा दिए। तुम्हारा दिमाग खराब है? सॉरी मीरा मैम, दोबारा नहीं होगा। दोबारा? नैना, तुम्हें लगता है तुम्हें दोबारा मौका मिलेगा? ओह समझी, तुम्हारा बैकग्राउंड ही ऐसा है। कभी सोचा है, नेशनल एंट्रेंस एग्जाम में टॉपर थी, फाइनेंस में लैम्बर यूनिवर्सिटी की टॉप स्टूडेंट थी तुम, फिर भी तुम यहाँ रोज कॉफी लाती हो और परमानेंट होने का चांस भी नहीं है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम लो क्लास हो। मीरा मैम गुस्सा मत कीजिए, मिस्टर अमन का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल मैं ठीक कर चुकी हूँ। आज रात ओवर टाइम करके कंप्लीट कर दूंगी, कॉन्ट्रैक्ट जल्दी साइन हो जाएगा। मिस्टर अमन पहले ही आ गए, मिस मीरा उनसे मिल चुकी हैं। सच कहा? उन्होंने तुम्हारी तारीफ भी की है। तुमने मुझे कॉफी लेने भेजा ताकि मिस्टर अमन से मिलकर साइन कर सको। तो क्या हुआ नैना, प्रपोजल लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। इस दुनिया में हाई स्टेटस होना बड़ी बात होती है। लेकिन क्यों? मैंने मेहनत की, मुझे परमानेंट होने के लिए एक क्लाइंट चाहिए था। मिस मीरा, सब कुछ होने के बाद भी आपने मेरा क्लाइंट क्यों छीना? तुम्हें ये दिखाने के लिए कि गरीब कभी ऊपर नहीं आ सकता, चाहे जितना मर्जी मेहनत कर लो। तुम लो क्लास गरीब हो। आज रात मैं मिस्टर रोहन और मिस्टर अमन के साथ डिनर कर रही हूँ। तुम्हें इस जिंदगी में कभी मिस्टर रोहन से मिलने का मौका भी नहीं मिलेगा। निकलो यहाँ से। मेरा, हम हाई स्कूल में क्लासमेट्स थे, मुझे एक और चांस दे दो, मैं ये नौकरी खोना नहीं चाहती। तुम सच में बहुत ही बेशरम हो। सच कहूँ तो तुम्हें निकाल के मुझे बहुत बुरा लगेगा। ओके, घुटने टेक के भीख मांगो, फिर शायद मैं तुम्हारी इंटर्नशिप एक्सटेंड कर दूं। मैं घुटने टेक लो या यहां से निकल जाओ, तुम्हारी चॉइस। अब क्या होगा? मीरा, मेरी बात सुनो बेटा, मेरी चिंता मत करो। नहीं करोगी? सुनो, इसका सामान लाओ और बाहर फेंक दो। क्या हुआ, इसके साथ तुम्हें भी निकाल दूं? मैं करूंगी। ये यहाँ कैसे? इस लड़की को परेशान कर रहे हैं, फिर भी वो यहीं रहना चाहती है। मिस्टर रोहन? मिस मीरा सक्सेना, कोलीग को बुली करने के लिए तुम्हें डिमोट करके तुम्हारी 3 महीने की सैलरी काटी जाएगी। मिस्टर यश, मैं नैना, तुम अब से फुल टाइम एम्प्लॉय हो। हाँ? सर ने अपना प्रॉमिस पूरा किया। फाइनेंस डिपार्टमेंट का आज हाफ डे है, सब लोग घर जाओ। क्या हुआ? घर जाओ। चलो चलो, आज जल्दी छुट्टी हो गई फाइनली, सच में। चलो चलो चलो, आज जल्दी छुट्टी हो गई फाइनली, सच में सच में। हाँ? 5 करोड़ मेरे कार्ड में? क्या ये सर ने मुझे दिए हैं? मिस मीरा, क्या आप अपनी माँ के ट्रीटमेंट के पैसे अरेंज कर पाई? अगर फ्राइडे तक पेमेंट नहीं हुई तो हमें आपकी माँ को डिस्चार्ज करना पड़ेगा। डॉक्टर, मुझे थोड़ा और टाइम दीजिए, मैं अरेंज कर लूंगी। मैं 3 जॉब्स कर रही हूँ, फ्राइडे को सैलरी मिलते ही हॉस्पिटल की फीस पूरी हो जानी चाहिए। बॉस ने अपना प्रॉमिस निभाया और मुझे फुल टाइम बना दिया। मैं उनके पैसे नहीं ले सकती। ये 5 करोड़ मुझे किसी तरह वापस करने होंगे। टाइम हो गया, मुझे पार्ट टाइम जॉब पर जाना है। मिस्टर रोहन, मैं कब से आपको डिनर पर बुलाना चाहता था, पर आप बिजी रहते हो, इसलिए मौका ही नहीं मिला। आज आपसे मिलकर मैं बहुत खुश हूँ। आइए एक टोस्ट हो जाए।
मिस्टर रोहन, मैंने आज एक एम्प्लॉय को डांट दिया और आपको बुरा लगा। अपॉलॉजी एक्सेप्ट कीजिए। तुम में काफी हिम्मत है मीरा सक्सेना। मेरे पीठ पीछे मेरे ग्रैंडपा के पास आ गई। अगर उन्होंने जबरदस्ती ना की होती तो मैं तुम्हारे और इस अमन के साथ ड्रिंक ना कर रहा होता। मुझे चापलूसी करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। नेक्स्ट टाइम ऐसा किया तो मेरी नजरों से दूर हो जाना। जी। सुना है मिस मेहरा के फादर मिस्टर खन्ना के फेवरेट स्टूडेंट थे। काफी अच्छे कनेक्शंस हैं। फाइनेंस एक्सपर्ट बनने के लिए टैलेंट ही नहीं, फैमिली बैकग्राउंड और कनेक्शन भी जरूरी होते हैं। मैंने सुना है कुछ शानदार लो क्लास लड़कियां पैसों के लिए डेस्परेट होती हैं और हर तरीके से फाइनेंस सर्कल में घुसना चाहती हैं। तो क्या हुआ? क्या फायदा? आखिर में वो हम लोगों के लिए मजे करने का जरिया होती है। अरे मिस्टर रोहन, कहाँ चले? ये यहाँ, ये ऐसी जगह पर क्या कर रही है? मिस्टर रोहन। नैना, मीरा पार्ट टाइम जॉब में बॉस और सुपरवाइजर दोनों के सामने पकड़ी गई। किस्मत ही खराब है। नैना, ये सार्क टेक्नोलॉजी से मिस्टर अमन है। आज दोपहर ही मैंने इन्हें क्लाइंट बनाया है और ये मेरे पापा के दोस्त हैं। ये लो मिस्टर अमन का कंपनी प्रोफाइल, इस पे काम करो। डील क्लोज हुई तो तुम परमानेंट हो जाओगी। जी मैं बिल्कुल करूंगी, थैंक यू। तो मिस मीरा मिस्टर अमन को जानती थी, डील तो आसानी से हो जाती और मैं इतनी बेवकूफ महीनों तक फ्री में काम करती रही। मीरा, ये भी तुम्हारी एम्प्लॉय है? ओह, ये लड़की तो काफी सुंदर है। अरे आओ यहाँ बैठो, तुम्हें और क्लाइंट से मिलवाता हूँ। नैना, मिस्टर अमन तुम्हारा भला चाहते हैं, इतनी अकड़ मत दिखाओ। बैठो। मेरे पास बैठो। मिस्टर रोहन और इस गरीब का क्या चक्कर है? नैना को देखकर इसका बिहेवियर कैसे चेंज हो जाता है? शायद वो हेलिक्स ग्रुप के एम्प्लॉय को ऐसी जगह काम करते देख शर्मिंदा हो गए। मुझे एक कॉल लेनी है। नैना, आज मिस्टर रोहन ने मुझे यहाँ डिनर के लिए बुलाया क्योंकि मैंने एक बड़ा क्लाइंट क्लोज किया है। तुम मेरे लिए खुश तो हो ना? बॉस इतने स्ट्रिक्ट और रूड हैं, यकीन नहीं होता उन्होंने डिनर पर बुलाया। मिस्टर रोहन का बैकग्राउंड काफी पावरफुल है। अगर उस रात वो नशे में ना होते तो हम कभी ना मिलते। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस मीरा। अगर तुम सच में खुश हो तो पियो। सॉरी, मैं ड्रिंक नहीं करती। अरे लड़के, बिना पिए काम कैसे चलेगा? प्रमोशन कैसे होगा? कनेक्शन कैसे बनाओगे? पियो। फाइनेंस पैसों के लिए ही पड़ी थी ना, इतनी सीधी मत बनो। सही कहा, पैसों से ही माँ को बचा सकती हूँ। मैं पीऊंगा। अब तुम दोनों की बारी है। पूरा पानी पियो।
निकलो। वाइन दो। शुक्र है दोनों सरदर्द चले गए। रोहन, रोहन, तुम्हें सीधी साधी लड़की पसंद है, जैसे ये सीधी साधी लड़की। बकवास मत करो। अभी से जेलस हो गए? पहली बार देख रहा हूं तुम किसी लड़की के इतने पास खड़े हो और उसके लिए स्टैंड लिया। अरे कुछ बोलते क्यों नहीं? मिस नैना, काफी कमाल हो तुम। हमारे रोहन को ये सब करने पर मजबूर कर दिया। क्या तुम दोनों क्लोज हो? हाँ, नहीं, मिस्टर रोहन और मैं बॉस और एम्प्लॉय हैं। इसने इतने आसानी से कैसे कह दिया कि हम बॉस और एम्प्लॉय हैं, जबकि कुछ दिन पहले ही तुम मुझे रूम तक छोड़ कर आओ। हेलिक्स ग्रुप में सैलरी कम है जो तुम्हें ऐसी जगह पर काम करना पड़ रहा है। मुझे पैसे चाहिए। ओह, मिस्टर रोहन, ये 5 करोड़ वापस लीजिए। हमारी डील हुई थी, मुझे परमानेंट होना था, मैं ये नहीं ले सकती। प्लीज ये वापस ले लीजिए। आज से ऐसा समझते हैं जैसे ये सब हुआ ही नहीं, ठीक है? कुछ हुआ ही नहीं। पागल लड़के, इतनी आसानी से कह दिया कि कुछ हुआ ही नहीं। तुम्हें पैसे चाहिए ना, इसे रिवॉर्ड समझो। लगता है 5 करोड़ इनके लिए कुछ भी नहीं। इतने सारे पैसे देकर शायद वो सब कुछ खत्म करना चाहते हैं, पर अगर मैंने ले लिए तो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। मैं पैसे वापस कैसे करूं? मिस्टर रोहन, आपकी हेल्प के लिए शुक्रिया, पर मैं ये पैसे नहीं ले सकती। मिस नैना, ये क्या कर रही हैं? मिस्टर रोहन तो बिजनेस के काम से अब्रॉड गए हैं, अगले महीने आएंगे। अगले महीने? कुछ अर्जेंट है, उनके प्राइवेट नंबर पे कॉल करूं? नहीं नहीं, मैं काम पे वापस जाती हूँ। सर 1 महीने तक नहीं आएंगे, उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि मैं यहाँ आई थी। हाँ। माँ, आप बाहर क्यों आ गई? आज हॉस्पिटल के डिनर में बंस मिले थे, मेरी नैना को पसंद है, तुम्हारे लिए बचाया है। माँ सब कुछ भूल गई, पर मुझे प्यार करना नहीं भूली। नैना, तबीयत ठीक है? तुम ठीक हो? पता नहीं क्या हो रहा है, बार बार होता है। तुम प्रेग्नेंट हो? जब मैं तुम्हारे साथ प्रेग्नेंट थी तब भी ऐसा होता था। तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो? तुम्हारी शादी हो गई है या मैं भूल गई? मैं माँ को नहीं बता सकती कि मैंने परमानेंट जॉब के लिए बॉस के साथ रात गुजारी है। मम्मा, मेरी शादी हो चुकी है, बस बेबी के पापा बहुत बिजी रहते हैं, इसलिए बता नहीं पाई। इतनी बड़ी बात मुझे क्यों नहीं बताया? अरे बहुत अच्छे, तुम माँ बनने वाली हो। नैना का हस्बैंड कैसा इंसान है? तुम्हारा ख्याल रखता है ना? वो मम्मा, हम वापस हॉस्पिटल चलते हैं। ये बॉस यहाँ क्यों आए? नैना, रात में ये रोना धोना क्या है? अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं ये घर अब रेंट पे नहीं दूंगी। लेकिन क्यों? वहाँ देखो, वो हेलिक्स ग्रुप का सीईओ है, रिवारा का क्राउन प्रिंस रोहन खन्ना। उन्होंने मॉल बनाने के लिए ये पूरी जमीन खरीद ली है। आज रात ही सामान बांधो और निकल जाओ यहाँ से। मैडम प्लीज, नैना प्रेग्नेंट है, मेरी बेटी को मत निकालिए। प्रेग्नेंट होके भी घर नहीं है? तुम जैसे गरीब घर में पैदा होके उस बच्चे का फ्यूचर पहले से ही बर्बाद था। अभी इसी वक्त घर खाली करो, जल्दी। आप तुम प्रेग्नेंट हो, गुस्सा मत करो, मम्मा तुम्हारी मदद करेंगी। ठीक है, हम काफी दूर हैं, वो शायद हमारी बेइज्जती नहीं सुन पाए होंगे। वहां इतना शोर क्यों है? मिस्टर रोहन, वो लड़की यहाँ रेंट पे रहती है। उसके पापा गुजर गए और उसकी माँ को अल्जाइमर है।
सिर्फ मेडिसिन का खर्चा ही हजारों में आ जाता है। वो लड़की सब संभाल रही है, वो कई जॉब्स भी करती है ताकि खर्चा और मेडिसिन दोनों हो पाए। ओह, मौसम खराब है, चलते हैं। मुझे परमानेंट होना है। अपनी माँ को बचाने के लिए फुल टाइम एम्प्लॉय बनना था। मैं गलत था। माँ, आपके कपड़े भीग रहे हैं। रुको। चलो। नैना, ये तुम्हारा हस्बैंड है? ये मेरे बॉस हैं। नैना के बॉस, आप बहुत अच्छे हो। हम बस का वेट कर रहे हैं। मौसम खराब होने की वजह से बहुत ठंड है। आपको कुछ हुआ तो नैना को टेंशन होगी। अच्छा, चलिए। परेशानी के लिए सॉरी। सॉरी बॉस, गाड़ी भीग गई। हेलिक्स हॉस्पिटल चलो। मिस्टर रोहन, माँ तो हेम हॉस्पिटल में है। वो छोटा सा हॉस्पिटल तुम्हारी माँ का इलाज नहीं कर पाएगा। हेलिक्स हॉस्पिटल में अल्जाइमर के टॉप एक्सपर्ट्स हैं। मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती। ये एम्प्लॉय के लिए कंपनी की तरफ से फैमिली बेनिफिट्स हैं। हम हॉस्पिटल पहुंच गए, यही रोक दो। इसके लिए थैंक यू। तुम्हारे पास घर नहीं है तो कहाँ रहोगी? वो फिलहाल काम चलाने के लिए होटल रूम ले लूंगी। कंपनी गेस्ट हाउस में रहो। कंपनी गेस्ट हाउस सिर्फ कुछ एम्प्लॉयज के लिए है। मिस मीरा तो अभी फुल टाइम हुई हैं और वो वहां रहेंगी। मिस्टर रोहन उन्हें कुछ ज्यादा ही स्पेशल ट्रीट कर रहे हैं। कंपनी गेस्ट हाउस, क्या ये भी बेनिफिट है? ध्यान से चलाओ। जी। मिस्टर रोहन मिस मीरा की बहुत केयर करते हैं। क्या ये तुमने बनाया है? हाँ, पर अब इसकी जरूरत नहीं, बाद में फेंक दूंगी। ना बैकग्राउंड, ना कनेक्शंस, सिर्फ मेहनत का क्या मतलब? मुझे तो हाँ। ये पहली बार है जब मिस्टर रोहन किसी लड़की से बात कर रहे हैं। ये इतनी कमजोर क्यों लग रही है? इसे हुआ क्या? मैं गाड़ी में कैसे सो गई? कहीं बॉस ये तो नहीं सोच रहे कि मैं जानबूझकर ऐसा कर रही हूँ? ये मुझसे इतना डरती है? मिस्टर रोहन, हम पहुंच गए हैं। थैंक यू मिस्टर रोहन। जरूरत नहीं है। गुड नाइट मिस नैना। आखिर हो क्या रहा है? इसे बीमार देखकर मुझे ये बेचैनी क्यों हो रही है? यश। हाँ? कल पूरी कंपनी का मेडिकल चेकअप करवाओ। मिस्टर रोहन, एनुअल चेकअप की डेट अभी नहीं है, इसलिए हम अभी करवाएंगे। कल ही होगा। रोहन, इतने बिजी आदमी को मुझे कॉल करने का टाइम कैसे मिला? तुम फाइनेंस कंसल्टेंट ढूंढ रहे थे ना? कल मेरी कंपनी आ जाओ, मैं किसी से तुम्हें मिलवाता हूं। हेलिक्स ग्रुप कितना अच्छा है। कंपनी गेस्ट हाउस भी इतना आलीशान तरीके से बनाया हुआ है। मैं ज्यादा मेहनत करूंगी।
प्रमोशन और रेज लेना होगा। ड्रामा वेव। बच्चों, मिस्टर रोहन कभी नहीं चाहेंगे कि उनके बेबीज मुझ जैसी लड़की से जुड़े, पर टेंशन मत लो, तुम हमेशा मम्मा के लिए बेस्ट रहोगे। मैं और ज्यादा मेहनत करूंगी ताकि तुम एक अच्छी लाइफ जी सको। अगर बॉस को पता चला कि मैं उनके बच्चों के साथ प्रेग्नेंट हूं तो उन्हें लगेगा कि मैंने उनकी लाइफ बिगाड़ दी। असिस्टेंट यश यहाँ क्यों है? अरे नैना, क्या तुम्हें पता है कंपनी ने अचानक चेकअप क्यों रखवाया? मुझे नहीं पता। वैसे आलिया, हेल्थ रिपोर्ट सिर्फ एम्प्लॉयज ही देख सकते हैं ना, कोई और नहीं देखेगा ना? हाँ बिल्कुल, वो प्राइवेट होती है। आज एक बड़ा क्लाइंट इन्वेस्टमेंट डिस्कस करने आएगा। मिस मीरा ने कहा 5 मिनट में प्रपोजल फिक्स करके दो। फिर से मेरा क्रेडिट ले रही है। ओके, इस इन्वेस्टमेंट प्लान का काफी डेटा गलत है, 5 मिनट में नहीं होगा। तुम्हारा मतलब मेरा प्रपोजल बेकार है? नैना, परमानेंट हो लेकिन फिर भी मैं निकाल सकती हूँ। मेरा वो मतलब नहीं था। मैं आज थोड़ी देर में पीएस ग्रुप के सीईओ कुणाल मेहरा के साथ डील डिस्कस करने वाली हूँ। कल तुम जिस फाइनेंस कंसल्टेंट की बात कर रहे थे उसमें ऐसा क्या है जो तुम रेकमेंड कर रहे हो? मिलते ही समझ जाओगे। तो आज जो बड़े क्लाइंट आने वाले हैं वो पीएस ग्रुप के सीईओ है। हेलिक्स ग्रुप के बाद पीएस ग्रुप दुनिया का सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। मिस मीरा, अगर ये डील आज हो गई तो फाइनेंस इंडस्ट्री में आपका नाम हो जाएगा। सुना है आपके खन्ना फैमिली से पर्सनल रिलेशंस है। कुणाल मेहरा जैसे क्लाइंट को क्या मिस्टर रोहन ने आपसे पर्सनली इंट्रोड्यूस करवाया है? चुप करो, क्या देख रही हो? सॉरी, ये मेरी जॉब का हिस्सा नहीं है। क्या कहा? ये क्या है? कुछ दिन पहले मैंने इसे वॉमिट करते देखा था। कहीं ये प्रेग्नेंट तो नहीं? अरे रोहन, क्या हुआ? नैना का चेकअप रिपोर्ट आ गया। ये रहा। सिर्फ मिस नैना के चेकअप के लिए उन्होंने पूरे ग्रुप का चेकअप करवा दिया। जरूर कुछ तो गड़बड़ है। वो प्रेग्नेंट है, इसीलिए मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था। अरे इतनी देर से अंदर क्या कर रही हो? बेशरम। अच्छा होगा तुम प्रेग्नेंट निकलो। जैसे ही तुम्हारे अगेंस्ट कुछ मिलेगा तुम्हें फंसाकर जिंदगी भर अपने लिए प्रपोजल लिखवाऊंगी। एम्बुलेंस बुलाओ। ये तो बेहोश हो गई, अब क्या? मिस्टर रोहन और कुणाल आने वाले हैं, अंदर छुपा दो। खून साफ करो। मिस्टर रोहन, आप यहाँ कैसे? तुम लोग क्या कर रहे हो? हम वॉशरूम यूज कर रहे थे। वो बस तुम लोग हो? हाँ। हटो। मिस्टर यश, आप सच में अंदर जाएंगे? ये लेडीज वॉशरूम है। हेलिक्स ग्रुप रिवारा की टॉप कंपनी है। अगर सबको पता चला आप लेडीज वॉशरूम में आए हैं तो ग्रुप की इमेज का क्या होगा? हेलिक्स ग्रुप की रेपुटेशन जब मुझे टेंशन नहीं तो तुम्हें क्यों है? कहीं तुमने किसी के साथ अंदर कुछ किया तो नहीं? अंदर कोई नहीं है, सच में बस हम ही हैं। अगर झूठ बोला और मुझे पता चला कि तुमने कोई घटिया हरकत की है तो मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। हाँ, मिस्टर रोहन,
क्या नैना बीबी मुसीबत में? हटो। मिस्टर रोहन, अंदर कोई नहीं बचा। मिस्टर रोहन, आप यहीं रेस्ट कीजिए, मैं मिस नैना को देखता हूं। जरूरत नहीं, वो मेरी है, मैं उसे ढूंढूंगा। मिस्टर रोहन, मिस्टर रोहन, ये क्या हो गया? आज तो मैं गई काम से। इन्हें ले जाओ।